Hello everyone, I'm Suchi Agrawal. Let us study this chapter, Physical Features of India. So first of all, what this chapter deals about? It deals with the various physiographic division of India. That means इंडिया में हम देखेंगे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेटूज है. So in this entire chapter, we are going to discuss in detail कि कहाँ पे क्या है and what is their significance. So firstly, let me tell you about myself. I have 9 years experience in offline teaching and I'm also founder of an NGO. I completed my Bachelor's of Engineering in Electronics and Communication and I'm very passionate about painting and designing wall clocks. Okay, so this is a chapter Major Physiographic Divisions of India. So if you see the picture, you can see that India is divided into 6 physiographic division. कौन से division है ये? It is the Himalayan mountains, the one in brown. Yellow one is northern plains. Then we have the peninsular plateau. Then we have the coastal plains. And then islands. And lastly we have the Indian deserts. So इतने parts में पूरा India हमारा divided है. So in further we are going to discuss in detail. See. So first one we'll discuss about the Himalayan mountains. Now, what are these mountains about? So, these are the young and structurally full mountains which are stretched over the northern borders of India. So, see in the map, you can see that Himalayas कहाँ है? So, northern part of India में जो mountain ranges हैं, that are known as Himalayas. अभी जो ranges हैं, they runs in west to east direction from Indus to the Brahmaputra. So, here we have Indus and here we have Brahmaputra. तो यहाँ पे west to east direction में Himalayas का structuring है. So they form an arc which covers a distance of about 2400 km. So see ये जो distances हैं ये भी आपको learn होने चाहिए. Okay, so if you can see on the map आप देख रहे हो एक arc type का form कर रहे हैं Himalayas. Okay. Then we see that the width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. So obviously Kashmir side में जो Himalayas की width है ये काफी ज़्यादा है. Okay, and it is decreasing as it is moving towards the eastern side. So then Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. What does this mean? कि अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए that what is the longitudinal division of Himalayas, तो मैं इन तीनों को लिखना है हिमाद्री, हिमाचल and शिवालिक. Is it clear? Okay. So हिमाद्री क्या है? नदर मोस्ट रेंज है. So I'll show you on the map. ये देखो ये वाली जो है हिमाद्री. Okay, first one, second one is the Himachal and the third one is the Shivalik. ठीक है, इनके बारे में एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. See, I have tried to write down all these things in form of points. उससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें से की पॉइंट्स निकाल के लर्न करने हैं and एग्जाम में just as it is you have to produce this. So yes, Himadri, it is a northernmost range. It is also known as Great or Inner Himalayas. अब इसमें क्या है? इट इज अ मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक मिलेंगी यहाँ पे हमें. ठीक है, एंड जितने भी हमारे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है ना वो सब हमें हिमाद्री में मिलेंगे. देन द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिक इन नेचर. इनके जो फोल्ड्स है ना ये असिमेट्रिक है. असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? देखो, सो सिमेट्रिकल मतलब लेफ्ट राइट साइड इक्वल. ओके, असिमेट्रिकल मतलब जब हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो विल सी कि लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट इज हिमालयस का जो हिमाद्री वाला पार्ट है वो असिमेट्रिकल है. द कोर इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट एंड दे आर पेरिनली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. व्हाट डज दिस मीन कि पेरिनली यहाँ पे ना स्नो बाउंड रहती है एंड काफी सारे ग्लेशियर्स यहाँ से डिसेंड करते हैं. पेरिनली मीन्स थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे स्नो रहेगी. नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो हिमाचल इज डन. Sorry, Himadri is done. Now we'll move on to Himachal. तो हिमाचल कहाँ लाई कर रहा है? This range is lying south of Himadri. हिमाद्री कहाँ है? हमने देखी फर्स्ट वाली. हिमाचल जस्ट उसके साउथ में आएगी. So it is the most rugged, uneven, covered with rocks mountain system. What it is saying कि सबसे ज्यादा rugged है, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा rocks हैं इस mountain system में. ठीक है, एंड उसके altitude और width के सब हमें dimensions दिए हुए हैं. कुछ हमें important ranges यहाँ पे मिल रही हैं which is फिर पंजल रेंज, धुलाधर एंड महाभारत रेंजेस. ये हमें लर्न होनी चाहिए.
एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें कुछ फेमस वैलीज मिल रही हैं, जैसे कश्मीर की वैली मिल रही है, कांगड़ा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन. सो दिस इज द सेकेंड वन, हिमाचल. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन इज द शिवालिक. अब शिवालिक क्या है? ये आउटर मोस्ट रेंज हो गया हिमालयाज का. ठीक है, ये एक्सटेंड करेगा, इनकी भी विड्थ और एल्टीट्यूड दिया है. सो ट्राई टू मग अप देम, अगर नहीं हो पाए तो देन लीव इट. So they are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers. अब देखो क्या हो रहा है ना, शिवालिक जो है सबसे नीचे वाले एरिया में प्रेजेंट है, तो ऊपर से जितनी भी रिवर्स आ रही है वो सब अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही होंगे. ओके, तो सारे सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं? शिवालिक में डिपॉजिट हो रहे हैं. इस वजह से इट इज रिटन कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट, ये जो वैलीज हैं दे आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, इन सब से कवर होंगी. अब क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, इनको हम बोलेंगे दुन्स. देखो कौन सी दुन्स? जो लेसर हिमालयस है ना सेकेंड वाले, और जो शिवालिक है, इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा उसको हम बोलेंगे दुन्स. दुन्स के एग्जाम्पल जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून, दीज आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. ओके, सो अब अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दैट राइट अबाउट द वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयास, तो फिर हमें इस डिवीजन के बारे में लिखना होगा. ठीक है, नाउ सजेस्ट टू यू कि आप ये ना डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, इससे बहुत इजीली मेमोराइज हो जाएगा. एंड जो टीचर या जो एग्जामिनर्स को चेक करेगा दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत अच्छी नॉलेज है ओके सब्जेक्ट की. सो देखो वेस्टर्न मोस्ट में हमारे पास इंडस है. सो इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालयाज हैं इट इज कश्मीर और एंड हिमाचल हिमालयाज, या इनको पंजाब हिमालयाज भी बोलते हैं. देन सतलज एंड काली के बीच में वी हैव कुमाऊन हिमालयाज. काली एंड तीस्ता के बीच में वी हैव नेपाल हिमालयाज. तीस्ता एंड दिहांग के बीच में वी हैव आसाम हिमालयाज. तो ये हमें लर्न करना है, पहले पंजाब, फिर कुमाऊन, फिर नेपाल एंड फाइनली आसाम हिमालयाज. ओके, मूविंग ऑन टू फर्दर. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो दिहांग, ये दिहांग रिवर है, तो यहाँ पे दिहांग गॉर्ज के बाद क्या हो रहा है, हिमालयस शार्पली बेंड कर रहे हैं टुवर्ड साउथ. ये देखो यू कैन सी दिस, शार्पली हिमालयस बेंड कर रहे हैं ओके, एंड स्प्रेड कर रहे हैं अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. सो इन हिमालयस को हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल. ओके, सो दीज हिमालयस आर नोन एज पूर्वांचल. सो दे आर रनिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है यहाँ पे रन कर रहे हैं. क्या कंपोजिशन है इनका? दे आर कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स एंड दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. फिर यहाँ पे हमें कुछ और भी हिल्स मिलेंगी, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल एंड मीसो हिल. ओके, नाउ नेक्स्ट नर्दर्न प्लेन. अब नर्दर्न प्लेन कहाँ था? अभी हमने देखा था मैप में, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि ये हिमालयाज हो गए, एंड यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट है दैट इज नर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, अब इसको समझते हैं. सो नर्दर्न प्लेन्स में क्या रहेगा, ये एक तो 3 मेजर रिवर सिस्टम से फॉर्म्ड है, जैसे इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. इस प्लेन में ना, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. अब देखो इस प्लेन में क्या हो रहा है, सारी जो रिवर्स है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है. ओके, एलुवियल सॉइल आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन होगा. तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैंने रेड बॉक्सेस में लिखे हैं, विच जो इंटायरली नर्दर्न प्लेन को डिफाइन करते हैं. क्या क्या है? रिच सॉइल है यहाँ पे, एडिक्वेट वाटर है, फेवरेबल क्लाइमेट है, एग्रीकल्चरली ये प्रोडक्टिव पार्ट है, और डेंसली पॉपुलेटेड है. ऑब्वियसली ये पांचों चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड है. रिच सॉइल होगा, वाटर ज़्यादा होगा, फेवरेबल क्लाइमेट होगा, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अच्छा प्रोड्यूस करेगा ही, और जब एग्रीकल्चर अच्छा प्रोडक्शन होगा तो लोग वहाँ आके रहेंगे, एंड सो वो प्लेस जो होगी वो डेंसली पॉपुलेटेड अपने आप बन जाएगी. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव द डिवीजन ऑफ नर्दर्न प्लेन्स. अब नर्दर्न प्लेन्स की तो डिविजन्स है, इसमें हमारे पास पहले आ रहे पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन. पंजाब प्लेन कहाँ लाई कर रहा है? दे आर फॉर्म्ड बाय इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज में. गंगा प्लेन जो है घाघर एंड तीस्ता के बीच में एक्सटेंड कर रहा है. ये जो हमारा नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट होगा. एंड लास्टली ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है आसाम में. ओके, नाउ डिवीजन ऑफ नर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स. अभी तक हमने नॉर्मल डिवीजन देखा था, ठीक है. अब जब रिलीफ फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा तो नर्दर्न प्लेन्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स में? देखो भाबर, तराई, भांगर एंड खादर.
अब व्हाट इज भाबर, थेराई, भांगर, खादर? जब आप पहली बार इन टर्म्स को सुनोगे ना, सो एट टाइम्स आपको लगेगा अरे क्या है ये, कैसे लर्न होगा ये, भागने की इच्छा होगी। बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इजी है। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कैसे कैसे इसको करना है, एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ये जो डायग्राम है ना, इसको मेमोराइज करो। देखो, हिमालय के जस्ट साइड में हमें मिल रहे हैं भाबर, भाबर। ठीक है, फिर भाबर क्या है, रॉक टाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई रिवर के कुछ ट्रेसेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड में हो तेराई। तो तेराई हमें थोड़ा सा स्वैम्पी टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीनरी है तो हमें लग रहा है शायद यहाँ पे रिवर के ट्रेसेस मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट अब खादर देखो, तो जो भी रिवर वैली है उसके जस्ट साइड में हमें मिल रहा है खादर। ठीक है, और खादर से थोड़ा एलिवेटेड पोर्शन पे हमें मिल रहा है भागर। ठीक है, भांगर जो है रिवर वैली से थोड़ा दूर है। ओके, अब देखते हो, अब देखो इनके पॉइंट्स देखो। भाबर बेल्ट जो है ये नैरो बेल्ट है ऑफ द प्लेन, जो कवर्ड होंगे विद पेबल्स एंड फुटहिल्स ऑफ शिवालिक में हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर कर जाएंगी। तेराई बेल्ट जो है ये भाबर के नेक्स्ट रीजन में आएगा, ये न्यूअर एलुवियम से फॉर्म होंगे, ये थोड़ा सा वेट स्वैम्पी और माशी रीजन फॉर्म करेंगे, इसलिए हम इन्हें तेराई बोलते हैं। और क्योंकि ये वेट है तो यहाँ पे थिकली फॉरेस्ट रीजन होगा। नेक्स्ट देखते हैं भांगर बेल्ट। भांगर बेल्ट क्या है, ओल्डर एलुवियम से फॉर्म है, ये लाई करेंगे अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड ये क्या करेंगे, टेरेस लाइक फिगर फॉर्म करेंगे, अभी मैंने दिखाया था, है ना। इनमें क्या होता है, एक कैलिकरस डिपॉजिट होता है विच इज नोन एज कंकर एंड विच मेक्स इट लेस फर्टाइल। ओके, देन वी हैव खादर बेल्ट। अब खादर बेल्ट क्या है, ये न्यूअर और यंगर डिपॉजिट है ऑफ द फ्लड प्लेन, और ये क्या होगा, हर साल रिन्यू होंगे, सबसे ज्यादा फर्टाइल होंगे एंड आइडियल होंगे फॉर एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिवर वैली के जस्ट साइड में है, तो जो भी चीज रिवर के साइड में होगी वो फर्टाइल भी होती है और वो एग्रीकल्चर के लिए भी बेस्ट होती है, तो वही है खादर बेल्ट। नाउ दोप। दोप क्या होता है, कोई भी दो रिवर्स हैं उनके बीच का जो लैंड होगा दैट इज नोन एज दोप। ठीक है, सो इट द ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन टू कॉन्फ्लुएंट रिवर्स इज नोन एज दोप। यहाँ पे द होना चाहिए, दिस विल बी THE द। ओके, द पेनिनसुला प्लेटो। तो पेनिनसुला प्लेटू क्या होगा, प्लेटू क्या होता है ना, इस टाइप का एक रेस्ड प्लेटफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर। So it is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. ठीक है, ये कैसे फॉर्म्ड होगा, क्या होगा, जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट कर रहा होगा तो उस समय पे जो प्लेटू का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज पेनिनसुला प्लेटू। अब इसका एक डिटेल हिस्ट्री है कि कैसे गोंडवाना लैंड जो है वो ड्रिफ्ट हुआ था और कैसे पेनिनसुला प्लेटू फॉर्म हुआ था, वो आई थिंक हम किसी और वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम इसमें सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। अब ये जो प्लेटू है इसमें दो ब्रॉड डिविजन्स हैं, एक तो सेंट्रल हाईलैंड है एंड एक डेक्कन प्लेटू। सो यू कैन सी, जो अपर वाला पार्ट है दैट इज सेंट्रल हाईलैंड, जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड, so the part of the peninsular plateau lying north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, किन किन रेंजेस से बाउंड होगा, द विंध्यास रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है, यहाँ से देखो अरावली है, यहाँ पे विंध्यास है, सतपुराज है, यहीं पे जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, फिर क्या है, the further westward extension gradually merges with the sandy and the rocky desert of Rajasthan. Obviously अब देखो ना, यहाँ पे है सेंट्रल हाईलैंड, जब इसको और वेस्ट में एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ पे डेजर्ट मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि वेस्ट में एक्सटेंड करोगे तो आपको डेजर्ट मिलेगा, वेरी इजी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं दैट इज चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये कहाँ से फ्लो कर रही है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फ्लो कर रही है, मतलब इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से स्लैंटिंग होता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये स्लोप इंडिकेट करता है। ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन में हम यहाँ क्या देखेंगे, बुंदेलखंड देखेंगे और बघेलखंड भी यहाँ पे देखते हैं। फर्दर हम देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू जो है इट मार्क्स अ फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, तो ईस्टवर्ड में हम देखते हैं जब भी सेंट्रल हाईलैंड के, तो यहाँ पे हमें छोटा नागपुर प्लेटू दिखेगा। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द डेक्कन प्लेटू। ये क्या है, ये एक ट्राइंगुलर लैंडमास है, देखो नर्मदा रिवर के साउथ में और एक ट्राइंगुलर लैंडमास है, इसमें भी हमें कुछ प्रोमिनेंट हिल्स मिल रही हैं जैसे महादेव, कैमूर हिल, माइकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये सारी हिल्स हैं यहाँ पे। फिर जो डेक्कन प्लेटू है ना, इट इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड।
देखो ईस्टवर्ड की तरफ ना ये स्लोप करेगा, इस तरीके से स्लोप करेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हमें इसका एक्सटेंशन, जो ये इसका जो एक्सटेंशन है वो वहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे भी कुछ इसकी हमें प्लेटूज देखने को मिलेंगे। और छोटा नागपुर प्लेटू डेक्कन प्लेटू के बीच में यहाँ पे एक फॉल्ट भी है, ठीक है। देन यहाँ पे एक प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं विच इज गारो, खासी एंड जैंतियार। सो आपको इसको लर्न कर सकते हो GKJ, ठीक है। ओके, so next we have difference between western ghat and eastern ghat. Now this is also very easy topic. हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, कैसे लर्न करेंगे, बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स। आप एक को लर्न कर लेना, ठीक है, एंड दूसरा उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे, आई शो यू। सो वेस्टर्न घाट जो है हायर होती है ईस्टर्न घाट से, ऑब्वियसली, तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से लेस हायर होंगी। ओके, हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट की? अनिमुटाई, ये लर्न करना है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी। अच्छा, वेस्टर्न घाट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वेस्ट कोस्ट के पैरेलल होंगे, ऑब्वियसली, कॉमन सेंस है। ईस्टर्न घाट्स कहाँ होंगे? ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल होंगे, ये भी कॉमन सेंस, हम लिख देंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेस्टर्न घाट है इनकी हाइट जो है ये इंक्रीज करेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ईस्टर्न में जस्ट अपोजिट लिख देना। ईस्टर्न में क्या होगा? हाइट इंक्रीज करेगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वेस्टर्न घाट जो होंगे कंटिन्यूस होंगे एंड ईस्टर्न घाट जो होंगे डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब पेनिनसुला प्लेटू के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। अगेन वो है एक तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो क्या हुआ था, डेक्कन ट्रैप जो है इस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से रॉक्स जो थी इग्निशियस फॉर्म हो गई थी, जिस वजह से हम इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, और इसी वजह से यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। फिर यहाँ पे अरावली हिल्स की बात कर रहे हैं। देखो अरावली हिल्स कहाँ है? यहाँ पे हमने देखा था, ये अरावली हिल्स है, ठीक है। तो अरावली हिल्स के बारे में क्या है? ये वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स में हमें मिल रही है। ये हाईली इरोडेड हिल्स है, काफी ज्यादा इरोड हो गई हैं और अब ब्रोकन हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट हमने देखा वेस्टर्न मार्जिन में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सैंडी प्लेन्स है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे। देखो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब डेजर्ट है तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि अच्छा लो रेनफॉल रिसीव करेगा, लो वेजिटेशन कवर होगा, ठीक है। स्ट्रीम जो होंगी सिर्फ रेनी सीजन में अपेयर करेंगी, बाकी समय डिसअपेयर कर जाएंगी। यहाँ पे एक ही लार्ज रिवर है, दैट इज लूनी रिवर। अब यहाँ पे दो सैंड ड्यून्स के बारे में आपके एनसीईआरटीज में लिखा था, तो एक तो है ब्राचन्स, ठीक है। बार्चन्स जो है ये देखो इस तरीके के जब ये क्रीसेंट शेप ड्यून्स बनाते हैं इनको हम बोलते हैं बार्चन्स। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, तो आप ये देख लो पैरेलल लाइंस जो जा रही है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कोस्टल प्लेन। सो देखो ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये किसके बीच में सैंडविच्ड है? ये वेस्टर्न घाट और यहाँ पे अरेबियन सी है, उनके बीच में सैंडविच्ड है। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो टॉप मोस्ट इज कोंकण प्लेन, ये मुंबई गोवा वाला एरिया है। उसके नीचे हमारा कन्नड़ प्लेन एंड सबसे नीचे हमारा मालाबार प्लेन्स, ठीक है। फिर अब देखो ईस्टर्न कोस्ट को देखेंगे हम। ईस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ मोस्ट हमें मिलेगा नॉर्दर्न सिरकार एंड उसके नीचे हमें मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे काफी सारी रिवर्स जो हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसी कोस्ट पे आके अपना डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। चिलिका रेंज जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इस ईस्टर्न कोस्ट का। नेक्स्ट अब आइलैंड्स। सो इंडिया के पास दो आइलैंड्स हैं, एक तो लक्षद्वीप है दैट इज प्रेजेंट इन अरेबियन सी एंड देन वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। इन दोनों आइलैंड्स को और देख लेते हैं। सो लक्षद्वीप का है, हमने देखा मालाबार कोस्ट के जस्ट साइड में। लक्षद्वीप जो है ना स्मॉल कोरल आइलैंड्स है। सो बेसिकली कोरल्स की फॉर्मेशन की वजह से लक्षद्वीप का एग्जिस्टेंस है। इनको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय, आमिनदाइव इस तरीके से इनको बोला जाता था, बट बाद में 1973 में इनका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। यहाँ पे जो कैपिटल है लक्षद्वीप का दैट इज करावती एंड इस आइलैंड पे ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की। एंड यहाँ पे एक पिट्टी आइलैंड है जहाँ पे हम बर्ड सेंचुरी भी देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये जो आइलैंड है ना दे आर बिगर एंड दे आर मोर न्यूमरस। देखो ये बहुत बड़े हैं। एट द सेम टाइम इनमें दो कैटेगरीज है। इनका नर्दर्न वाला पार्ट जो होता है अंडमान होता है और उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है निकोबार होता है, तभी हम इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। सो ये जो आइलैंड्स होते हैं ना दे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अ सबमरीन माउंटेन। सो देखो ये जो पिक्चर दी है मैंने आपको ये सिर्फ सबमरीन माउंटेन को दिखाने के लिए दिया है।
सबमरीन माउंटेन क्या होता है? ऐसे टाइप के माउंटेन्स जो ओशन या सी में प्रेजेंट होते हैं और कुछ पार्ट उनका ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये इस टाइप की पार्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है इस टाइप के माउंटेन्स है। फिर ये हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी मिलती है हमें फ्लोरा एंड फौना की। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है एंड यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर है। लास्टली यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जस्ट फॉर यू टू एमसीक्यू या उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो। सो माउंटेन्स जो होते हैं मेजर सोर्सेज होते हैं वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ के। जो नर्दर्न प्लेन्स होते हैं ये ग्रैनरीज होते हैं ऑफ द वर्ल्ड। ग्रैनरीज क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया नर्दर्न प्लेन्स काफ़ी गुड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है हमारे इंडिया का, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रैनरीज प्रोड्यूस करेंगे। प्लेट्यूज जो है वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का। ओके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड ऑल का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे होता है। एंड जो कोस्टल एरियाज हैं या जो आइलैंड्स हैं ये किस लिए यूज होंगे? ये पोर्ट एक्टिविटीज या फिशिंग के लिए यूज होंगे। ओके, सो आई होप आपको इंटायर चैप्टर अच्छे से इन डिटेल समझ में आ गया हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप इस चैप्टर को मेमोराइज भी कर पाओ। At the same time, if you want me to come up with more such videos, mention in the comment section कि आपको कौन कौन से chapters के video चाहिए and what is the part of this video which you like the most. So thank you so much and all the best.